Dear students, here I am with the part 2 of this chapter. And earlier, if you remember, we have discussed about three sectors and three sectors: primary, secondary, and tertiary sector. This you have already studied in middle classes, but now what is I am teaching you, the second part of this chapter. It is very important. Where are most of the people? Earlier, you have seen in the last topics that there is a historical change. Earlier, most of the share used to come from the primary sector, but now most of the share is coming from the tertiary sector. Now, where are most of the people employed? If we see the employment, I will just explain you the graph. Graph number 2, share of sectors in GDP. Still 1973, primary sector was a major contributor, and 2013-14, according to this data, जो tertiary sector है, that is the most important contributor in the GDP. A remarkable fact about India is that while there has been a change in the share of the three sectors in GDP, but similar shift has not taken place in employment. अब ये इम्पोर्टेंट बात, इसका क्या मतलब है, ये ग्राफ नंबर 3 में है. आप देखिए शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें तो 1977-78 में प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट वाज 71%, बट in 2017 the employment in tertiary sector has increased and the employment in primary sector has decreased, but all these changes they are very marginal. अगर मैं कहूं तो बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है. इसके बीच में जो गैप है स्टूडेंट्स, मतलब इनकम में शेयर ज्यादा है, उतना प्रोपोर्शनेट शेयर एम्प्लॉयमेंट में नहीं है. और ये जो बीच की कहानी है, ये जो बीच की जो कहानी है, दैट इज एक्चुअली द रूट कॉज. अगर मैं ये कहूं, ये दो पैरेलल लाइंस हैं. शेयर इन जीडीपी is there very much, in tertiary sector has increased, but share in employment has not much increased. और ये जो बीच का जो ये गैप है, this is actually the root cause of unemployment. ये एक आपको लग रहा होगा कि ये मैं इस बात को इतना एम्फसाइज क्यों कर रही हूँ, मैं इस बात को इतना एम्फसाइज इसलिए कर रही हूँ बिकॉज दिस इज द मेजर रूट कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, a very great problem in our country. And there is the industrial output, production of goods went up by more than 9 times. Employment in this industry went up by 3 times. So while production in the service sector rose by 14 times, employment 5 times. अब ये जो 14 और 9 का जो डिफरेंस है, दैट इज 11 टाइम्स का. ये जो 11 का जो डिफरेंस है, ये 11 का डिफरेंस क्यों है? ये एक रूट कॉज है. दैट इज फॉर, it is the root cause of the unemployment. More than half of the workers in the country are working in the primary sector, mainly in the agriculture sector, producing only about 1/6 of the GDP. In contrast to this, secondary and tertiary sectors, they produce rest of the produce, whereas they employ less than about half the people. What it means is that there are more people in agriculture. इसका मतलब क्या ये है कि एग्रीकल्चर में अभी भी लोग हैं पर वो छुपे हुए हैं. दैट मीन्स कि उनके होने ना होने से एग्रीकल्चर में कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है. In other words, workers in agriculture sector are underemployed because they don't have any work. So they are just working, मतलब going in the field, coming back to home, doing nothing. तो ये एक अंडर एम्प्लॉयमेंट है. और अंडर एम्प्लॉयमेंट का केवल ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं है, बट एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ अंडर एम्प्लॉयमेंट का. लाइक लास्ट ईयर की बात है कि बिहार में एक स्वीपर की जॉब के लिए भी जो हाईली क्वालिफाइड है, बीएससी बीटेक, उन्होंने भी फॉर्म फिल करा था फॉर द गवर्नमेंट जॉब ऑफ स्वीपर. रीजन, बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट के कारण
इतने क्वालिफाइड लोगों ने भी उसमें जॉब के लिए फिल किया था, बिकॉज एंड अगर उनको जॉब मिल गई है दैट मीन्स दैट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट. उनकी एफिशिएंसी क्वालिफिकेशंस आर मोर बट दे आर अंडर एम्प्लॉयड. एग्जाम्पल इसमें ये लक्ष्मी का दिया हुआ है दैट शी इज हैविंग 2 hectares ऑफ अनइरिगेटेड लैंड और रेन पे डिपेंडेंट है. जो आर हर 5 मेंबर्स काम कर रहे हैं, 5 के साथ जो है उस प्लॉट पे दे हैव नोवेयर एल्स टू गो. वो इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है. सो लेबर एफर्ट डिवाइड हो गया है. ईच वन इज डूइंग सम वर्क बट नो वन इज फुली एम्प्लॉयड. कोई फुली एम्प्लॉयड नहीं है. किसी के एडिशनल आने से इनकम में कोई फर्क नहीं पड़ा. एंड दिस काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जिसे आप मिडिल क्लासेस में भी पढ़ते आ रहे होंगे स्टूडेंट्स, and that is called the disguise unemployment. So underemployment and disguise unemployment, this kind of unemployment, जैसे इसमें मैंने बताया एग्रीकल्चर फील्ड में 5 लोग काम कर रहे हैं तो भी वो 5,000 अर्न कर रहे हैं, 8 लोग काम कर रहे हैं तो भी 5,000 अर्न कर रहे हैं. सो दिस काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट इज हिडन, नजर नहीं आ रही. टू समवन हु डज नॉट हैव अ जॉब is clearly visible as unemployed. Hence, it is also called disguised unemployment. इसीलिए इसको छुपी हुई unemployment कहते हैं. और यही इस नेक्स्ट पैरा में एग्जाम्पल के रूप में एक्सप्लेन किया है जो मैं आपको बता रही हूँ. देयर आर लैक्स ऑफ फार्मर्स. केवल ये फार्मर्स से रिलेटेड नहीं है, ये इवन सिटीज में भी अंडर एम्प्लॉयमेंट और डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है. दिस मीन्स दैट इवन इफ वी रिमूव अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम एग्रीकल्चर और उनको कहीं और जगह देंगे काम, तो एग्रीकल्चर सफर नहीं करेगा, रादर उनकी इनकम में इंक्रीज होगा. और यही रीजन है, आपने देखा होगा कि आपके घरों में जो मेड्स आती हैं या आप देखते हैं जो लाइक सिक्योरिटी गार्ड वगैरह है, ये सब आपके जैसे बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन सिटी नहीं है, दिल्ली में नहीं है ये, या दिल्ली या कहीं भी कोई भी सिटी में. दे एक्चुअली बिलोंग टू विलेजेस बट बिकॉज उनके पास एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं है, काम नहीं है, तो वो शहरों में शिफ्ट हो गए. एंड इट इज एडिंग टू देयर इनकम विच इज गुड, विच इज नॉट बैड. सेल्फ एम्प्लॉयड है. कोई किसी ने जैसे गोलगप्पे का काम शुरू किया और इतना इनकम इंक्रीज हो गई कि उसने अपना रेस्टोरेंट स्टार्ट कर लिया. सो दिस इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. और यही अंडर एम्प्लॉयमेंट का सॉल्यूशन है. if those who are employed in agriculture but not adding to the income, and if they are working somewhere else and earning income, that means they are solving the problem of unemployment or underemployment. This underemployment can also happen in other sectors. For example, casual workers urban areas में who search for daily employment. They are employed as painters, plumbers, पर उनके पास रोज के लिए काम नहीं है. Many of them don't find work every day. Similarly, we see other people of the service sector on the street. वो बेचारे सब्जी बेच रहे हैं, ये सब काम कर रहे हैं. They may spend a whole day, but उनके पास earning बहुत कम है. They are doing this work because they do not have better opportunities. तो ये unemployment. Now, how to create more employment? अब हम बात करते हैं कि ये more employment कैसे create करी जाए. अब लक्ष्मी का जो केस है, जिसके पास 2 हेक्टेयर का प्लॉट है, अनइरिगेटेड है, गवर्नमेंट कैन स्पेंड, वो बैंक से लोन ले सकती हैं और वो वेल कंस्ट्रक्ट करें. वेल कंस्ट्रक्ट करके अपनी फैमिली, उनके जो इरिगेशन की प्रॉब्लम है वो दूर हो सकती है. रबी सीजन में वो शी कैन ग्रो रबी क्रॉप्स एंड that 1 hectare of wheat can provide employment to 2 people. और 50 days के लिए सारे जो सोइंग सारी एक्टिविटीज हैं, she can have employment. So more members of the family can be employed in her own field. Now suppose a new dam is constructed and canals जो है वो डक करी जा रही हैं, और अगर उधर एम्प्लॉयमेंट का काम गवर्नमेंट उन्हीं लोगों को दे जो उस एरिया के हैं और अनएम्प्लॉयड हैं, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो सकती है. Now suppose Lakshmi and other farmers produce much more than before. They would also need to sell some of this. For this they may be required कि वो transport करें their products to a nearby town. If the government invests some money in the transportation and storage of the crops, और उसको वो बेटर रूरल रोड्स बनाए, मिनी ट्रक्स बनाए, everywhere several farmers like Lakshmi who now have access to water can continue to grow and sell these crops. ये जो एक्टिविटी है
can provide productive employment not just to farmers but also others like those in services. मतलब आप देखिए वो ट्रांसपोर्ट और ट्रेड, आपने 9th क्लास में अगर आपको याद हो फर्स्ट चैप्टर आपने पढ़ा होगा विलेज इन पालमपुर, तो गांव में हमें एक माइंड में होता है ना पढ़ते पढ़ते कि एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर नहीं, गांव में एग्रीकल्चर ही नहीं है, गांव में इवन जनरल स्टोर की शॉप है, ट्रांसपोर्ट के रूप में भी एम्प्लॉयमेंट है. सो लक्ष्मी's need is not confined to water alone. To cultivate the land, she also needs seeds, fertilizers, agricultural equipment, pump set. Being a poor farmer, she cannot afford many of these. So she will have to borrow money from the money lender or पे हाई रेट ऑफ, तो उसको मनी लेंडर से अगर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. लोकल बैंक्स अगर उसको क्रेडिट देता है, गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट बैंक जो है क्रेडिट देता है, देन शी विल हर प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड रियलिटी. दिस मीन्स दैट अलोंग विद वाटर चीप एग्रीकल्चरल क्रेडिट भी बहुत ज्यादा जरूरत है, जो हमने मनी और क्रेडिट में पढ़ा. आप मेरी वो वीडियो भी देख सकते हैं मनी एंड क्रेडिट की, मैंने उसमें समझाया था. अनदर वे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, दैट इज सॉरी मनी एंड क्रेडिट की थर्ड लेसन में हम इसमें देखेंगे. एंड इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, प्रमोट एंड लोकल लोकेट इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज इन सेमी रूरल एरियाज जहां पे लार्ज नंबर ऑफ पीपल may be employed. Suppose many farmers decide to grow अरहर, setting up a dal mill. आप देखिए किसान बिल जो था it was associated with all these things, जिसको जो किसान माफिया है राकेश सिक्कर जैसे लोगों ने इस बिल को सक्सेसफुली पास होने नहीं दिया एंड फोर्स किया गवर्नमेंट को कि वो इस बिल को विड्रॉ करे. सो डियर स्टूडेंट्स, लाइक गांव में केवल एग्रीकल्चर नहीं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ओपन करी जा सकती है. आपने एमडीएच मसालों का कभी एड अगर देखा हो, जो उनके जो स्टार्ट करने वाले हैं उनकी डेथ हो गई है वैसे, और वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, पैकेजिंग इंडस्ट्रीज, ये सब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं जिसमें बहुत बड़ी बड़ी मशीन की जरूरत नहीं है, उन्होंने गांव में ही खोली हुई है. ये सेटिंग अप अ दाल मिल कि वहां पे प्रिक्योर हो सके और प्रोसेस जो है बाद में सिटीज में भेजा जा सके, इससे फार्मर्स को ज्यादा फायदा होगा. कोल्ड स्टोरेज ओपन करना कुड गिव एन अपॉर्चुनिटी फार्मर्स को कि वो अपने पोटैटोज अनियंस वगैरह वहां पे स्टोर कर लें. इन विलेजेस नियर फॉरेस्ट एरिया वी कैन स्टार्ट हनी कलेक्शन सेंटर. फार्मर जो है वो आए और वहां पे सेल करे वाइल्ड हनी. इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि वो इंडस्ट्रीज वगैरह जो है सेटअप करें और वेजिटेबल्स प्रोसेस करी जाए, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जो है वो प्रोसेस करा जाए. एंड ये राइस, व्हीट, टोमेटो, स्वीट पोटैटो, ये सब प्रोसेस किया जाए. दिस विल प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट. This will provide employment in industries located in semi-rural areas and not only in urban areas. So out of this only, अगर हम बात करें that about 60% of population belongs to age group 5 to 29. Out of this only 51% educational institution में education ले रहे हैं. गांव की ये थोड़ी सी कहानी है. If these children are to attend school, ज्यादा बिल्डिंग्स की रिक्वायरमेंट होगी, बिल्डिंग बनेगी तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी. मतलब जितनी ज्यादा डेवलपमेंट होगी स्टूडेंट्स, उतनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी. एक स्टडी जो कंडक्ट करी गई प्लानिंग कमीशन, मतलब जिसे हम आज नीति आयोग बोलते हैं, एस्टिमेट करा दैट नियरली 20 lakh jobs can be created एजुकेशन सेक्टर में ही इफ वी आर टू इम्प्रूव हेल्थ सिचुएशन. हमें डॉक्टर्स, नर्सेज, हेल्थ वर्कर्स की जरूरत है. There are some ways by which jobs could be created and we would also be able to address the important aspect. Every state या region जो है उसके पास ये potential है for increasing the income and employment. रीजनल एंड न्यू सर्विसेज जैसे आईटी में बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की. फॉर एग्जांपल द प्लानिंग कमीशन ने जब स्टडी किया, टूरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है. इससे भी रिलेटेड मैं आपको एक छोटे से दो एक एग्जांपल दूंगी. मध्य प्रदेश में भीमबेटका केव्स है. अब अगर मैं कहूँ कि भीमबेटका केव्स के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड होने से नियर बाय चाय वाले को भी बहुत फायदा हुआ, तो आप लोगों को बड़ी शायद हंसी आएगी, बट देयर इज नो एग्जैगरेशन इन दिस. इट इज अ फैक्ट दैट बाय दिस इवन जो टी सेलर है was also in a very profitable condition. आप कहीं भी जाते हैं, आप देखते हैं ना बाहर हिल स्टेशन पे ज्यादातर बहुत अच्छा लगता है कि आप किसी हाइट पे गए हैं आप ट्रेवल करने के लिए, तो वो साथ में छोटे छोटे चाय वाले होते हैं, उनसे चाइनीज खाना या उनसे आपको
लाइक ब्रेड पकौड़ा, चाय, उस समय ठंड का मौसम होता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है। और भी कोई भी अगर एरिया टूरिज्म, गवर्नमेंट आप देखते हैं ना, हर एक स्टेट गवर्नमेंट अपने टूरिज्म के एड्स निकालती है। क्यों निकालती है? टू इंक्रीज टूरिज्म। आप आज देखिए, जहां जहां बहुत ज्यादा टेररिज्म है, टूरिज्म मैप में उन कंट्रीज का कहीं कोई सीरिया जाता हुआ आपको नजर नहीं आएगा। फॉर दैट मैटर, सॉरी टू से, हमारी नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान भी कोई टूरिज्म नहीं है वहां पे, टूरिज्म मैप पे है नहीं वो। ये नहीं कि हमारी इंडिया के टूरिज्म मैप पे नहीं है, बट कहीं भी नहीं है टूरिज्म के मैप में, बिकॉज स्टिल द नेम इज एसोसिएटेड विद टेररिज्म। तो टूरिज्म इज अ वेरी ग्रेट फॉरेन एक्सचेंज अर्नर, एंड साइड बाय साइड, इवन फॉर दैट मैटर, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी टूरिज्म से होती है। वी मस्ट रियलाइज दैट सम ऑफ द सजेशंस जो हमने दी हैं, ये इनको टाइम लगता है इम्प्लीमेंट होने में। द सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया मेड अ लॉ इम्प्लीमेंटिंग द राइट टू वर्क। अब ये राइट टू वर्क कैसे इम्प्लीमेंट किया? नरेगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 625 डिस्ट्रिक्ट्स में इम्प्लीमेंट हुई। रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसमें आप एमजी लगा देंगे तो महात्मा गांधी ऐड हो जाएगा। नरेगा 2005 श्योर, इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है, शॉर्ट नोट आता है। और अंडर नरेगा ऑल दोज हु आर एबल टू एंड आर इन नीड ऑफ वर्क इन रूरल एरियाज, उनको 100 डेज की श्योर एम्प्लॉयमेंट मिलती है। और ये द टाइप्स ऑफ वर्क दैट वुड इन फ्यूचर help to increase the production from land will be given to them. Now, division of sectors, organized and unorganized sector. Here it is an example of Kanta. She is working in office, और वो एक एग्जाम्पल है, और वो काम कर रहे हैं 9:30 to 5:30। ऑर्गेनाइज आवर्स हैं और पेड हॉलीडेज मिलती हैं। हेयर अनदर एग्जाम्पल, कमल जो सेल्स का काम कर रहा है, मतलब दुकान पे है, बट ही इज नॉट, ही हैज टू कम 7:30 इन द मॉर्निंग, रात को 8 बजे तक काम करता है, कोई अलाउंसेस नहीं है, कोई पेड लीव नहीं है, ओनली वेजेस ही इज गेटिंग। So organized and unorganized. This is another very, very important topic from examination point of view. Organized sector covers those enterprises or places of work where terms of employment are regular. अब ये इसके पॉइंट्स हैं जो मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं। दे आर रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट एंड हैव टू फॉलो उनके रूल्स एंड रेगुलेशन, जैसे फैक्ट्रीज एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, ग्रेचुटी, शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट। इट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइज क्योंकि गवर्नमेंट के जो भी प्रोसीजर होते हैं, जो भी कानून होते हैं, उसके अकॉर्डिंग कंपनीज, इंस्टीट्यूशंस को काम करना पड़ता है। वर्कर्स जो हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में सिक्योरिटी इंजॉय करते हैं एम्प्लॉयमेंट की। दे आर एक्सपेक्टेड टू वर्क ओनली अ फिक्स नंबर ऑफ आवर्स। अगर वो ज्यादा काम करते हैं तो उनको एक्स्ट्रा आवर्स के एक्स्ट्रा पेमेंट मिलती है। They also get several other benefits from the employers. And what are these benefits? Paid leave, payment during holidays, provident fund, gratuity. They are supposed to get medical benefits under the law. Factory manager has to ensure facilities like drinking water, safe working environment. जब वो रिटायर हो जाते हैं, these workers they get pension also. कॉन्ट्रास्ट है अनऑर्गेनाइज सेक्टर का। आई होप आपको ये ऑर्गेनाइज सेक्टर के पॉइंट जो मैंने अंडरलाइन किए हैं, ये सब समझ में आ गए होंगे। आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर एक बार में नहीं समझ में आया, बार बार अपने कॉपी में ना नोट कर लीजिए। ऑर्गेनाइज सेक्टर 1 2 3 4 5 6 एंड अनऑर्गेनाइज। अब अनऑर्गेनाइज पे देखिए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्मॉल स्कैटर्ड यूनिट। इसका मतलब है छोटे छोटे स्कैटर्ड यूनिट्स हैं, ऑर्गेनाइज नहीं है। जो सेल्समैन का काम कर रहे हैं, या जो कहीं भी लाइक हमारे घर में जो मेड्स हैं, वो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। देयर आर रूल्स एंड, हम कितनी छुट्टी देते हैं उनको, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशन, बट फॉलो नहीं किए जाते। जॉब्स जो हैं हेयर, ये लो पेड होती हैं, रेगुलर नहीं होती, कोई प्रोविजन नहीं है ओवर टाइम का, पेड लीव नहीं होती, हॉलीडेज की कोई गारंटी नहीं होती, लीव ड्यू टू सिकनेस एक्सेट्रा, एम्प्लॉयमेंट सिक्योर नहीं है, पीपल कैन बी आस्क्ड टू लीव विदाउट एनी रीजन ऑल्सो, उनको कोई नोटिस पीरियड की जरूरत नहीं है। व्हेन देयर इज लेस वर्क and such as during some seasons, some people may be asked to leave. A lot depends on the whims of the employer. Whims of the employer मतलब employer की मर्जी से। ये सेक्टर इंक्लूड करता है लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो एम्प्लॉयड हैं
छोटी छोटी जॉब्स में, अनफॉर्चुनेटली लेस एजुकेटेड दे आर, अनफॉर्चुनेटली, नॉट ऑल, ये कोई रूल नहीं है पर मैं आपको अनफॉर्चुनेटली बता रही हूँ। नाउ हाउ टू प्रोटेक्ट द वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफर तो करता है जॉब, पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत स्लोली एक्सपैंड हो रही है, ज्यादा एक्सपैंड नहीं हो रही है। मतलब उधर रिक्वायरमेंट्स भी बहुत है, क्वालिफिकेशंस की भी बहुत जरूरत है। वो इट इज कॉमन टू फाइंड मेनी ऑर्गेनाइज सेक्टर एंटरप्राइजेस इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑल्सो। वो कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करते हैं, कहने को ऑर्गेनाइज होते हैं लेकिन वो एक्चुअली में अनऑर्गेनाइज होते हैं। जैसे वो टैक्सेस से बचने के लिए जितने वर्कर्स को एम्प्लॉय करते हैं उतने वो रजिस्टर में दिखाते नहीं है। तो ना दिखाने के कारण जिनको उन्होंने नहीं दिखाया उनको वो सारी फैसिलिटीज नहीं देते हैं। Large number of workers are forced to enter the unorganized sector and they are forced to accept the conditions जो भी उनके लिए available है। Since 1990s, it is common to see a large number of workers losing their job. These workers are forced to take up jobs in the unorganized sector. There is also a need for protection and support of the workers in the unorganized sector. Now, who are these vulnerable people? अगर हम गांव में देखें, unorganized sector mostly comprises landless agricultural labor, छोटे छोटे farmers, शेयर क्रॉपर्स, मतलब जो शेयर करके फार्मिंग कर रहे हैं, मार्जिनल फार्मर्स, देन वीवर्स, ब्लैकस्मिथ, कारपेंटर्स। नियरली 80% रूरल हाउसहोल्ड इंडिया में स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं। ये फार्मर्स जो हैं दे आर दे नीड टू बी सपोर्टेड, इनको कुछ एडिक्वेट फैसिलिटीज गवर्नमेंट की तरफ से मिलनी चाहिए जैसे डेवलप कंट्रीज में मिलती है। तभी हम कहते हैं ना डेवलप कंट्रीज में बहुत मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर है। इन द अर्बन एरियाज unorganized sector comprises mainly of workers in small scale industry, casual workers in construction, trade and transport, and those who work as street vendors. हेड लोड वर्कर्स, हेड लोड वर्कर मतलब सिर पे हाथ सामान रखे ना जैसे पुली वगैरह, गारमेंट मेकर्स, रैक पिकर्स, ये जो छोटे छोटे बच्चे नहीं रैक पिकर्स होते। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ऑल्सो नीड्स गवर्नमेंट की सपोर्ट कि रॉ मटेरियल प्रोक्योर किया जाए। कैजुअल वर्कर्स, रूरल अर्बन एरियाज में प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, ये चाहिए है, ये होता नहीं है बेटे। वी ऑल्सो फाइंड मेजोरिटी ऑफ वर्कर्स फ्रॉम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, कि वो इस कैटेगरी में आते हैं बिकॉज ऑफ some reasons, historical reasons, they are not educated. Protection and support to the unorganized sector workers is thus necessary. पूरी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए, सोशल डेवलपमेंट के लिए ये बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स। सो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर। इन माय नेक्स्ट वीडियो मे बी टुमारो आई विल अपलोड एंड रिवीजन वीडियो, उसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हर एक टॉपिक से मैं आपको बताऊंगी मैं आपको। एंड प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए ज्यादा से ज्यादा, सो दैट एंड व्यू करिए इसको। आपको ये अंडरलाइन मैंने इसलिए किया है सो दैट यू कैन इजीली व्यू इट। और प्लीज ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए उसको, एंड टू मोटिवेट मी एंड माय चैनल।